चलिए, so you are requested to take out your book. We have covered the chapter national income and related aggregates. So we have done till date, we have covered 8 aggregates, 4 at market price and 4 aggregates at factor cost. Okay? After learning their definitions, then we have gone through the formulas, and then later on we have started with the numerical part. Practical part means how to apply those formulas practically on the numericals. Okay? So few questions we have discussed. So today I want to conclude this chapter, these numericals. Today is the last day to cover the numerical part, and tomorrow we will start next chapter, this measurement of national income. Okay, 3 methods to measure national income, that we will start tomorrow. So today once again I want to cover few more numericals, so that if anything is still not clear to any one of you, that should also become clear. So for that, I want you to go to the exercise part of your book. Please see, in my book it is page number 3.15, unsolved practicals. Okay, please take out that page. Unsolved numericals, practicals में one heading is given, practicals on basic aggregates of national income. So यहाँ से I am going to start. Total 11 numericals are there. So I am not going to solve all. जो representative numericals हैं, I will try to solve one of each type, and rest similar type of question you have to do the practice. Very simple. Simple in case if you have paid attention. If you have not learned the formulas, you are not clear about the concept, then it is not simple. But I expect those who are regular in attending the classes, they might be knowing all the things very carefully. So let us start without wasting any time. First question, you can see, this is calculate GNP at factor cost. ठीक है, calculate GNP at factor cost. मैं थोड़ी सी values बोल देती हूँ, जिसमें फर्स्ट वैल्यू इज, आप मुझे बता देना कि यही क्वेश्चन है आपके बुक में. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी एट मार्केट प्राइस 80,000. सेकंड आइटम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -200. दिस क्वेश्चन. Yes, ma'am. ठीक है जी, चलो, वेरी राइट. आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन साइड बाय साइड, यू कैन ऑल्सो सी. So firstly we have to calculate GNP at factor cost. So whatever is to be calculated, let us write that towards the left side of the equation. GNP at factor cost. This is to be calculated. Now you please see in the particulars which are given, particular means items which are given, which is the largest term, that is very first term, NDP at MP. ठीक है, एक यही term main term है. So we need to start from here, NDP at MP. ठीक है जी, whatever is given in the question we have written. Now we have to see what can we do to this term so that it becomes this GNP at factor cost. ठीक है, we have to see what should be added in this or what should be subtracted from this so that we become able to get this aggregate. ठीक है, तो how to do that? Now this is net term and we want it to be gross. So what should be added here? You can respond with it by unmuting yourself. Depreciation. Yes, very right. Very right. We should add depreciation plus depreciation. ठीक है, फिर then this term is at market price and we want it to be at factor cost. What should be subtracted? Net indirect tax. Net indirect taxes. Subtract करने पड़ेंगे because ये market price को we have to make it factor cost. So minus net indirect taxes. Then this term is domestic product, and we have to make this term a national concept. Then what should be added here? NFI. Factor income from abroad. Yes, very right. NFIA should be added ताकि ये हमारा domestic concept will become national concept. So plus NFIA. ठीक. Now एक बार once again please check all the things are right or not. We need not to be in a hurry. Carefully एक बार check कर लें. ठीक है. But I am feeling this is a sufficient equation जो हमें चाहिए to find GNP at FC. Now in the second line we have to put the values. So let us substitute.
NDP at MP is 80,000 minus depreciation. You have to write in full words, ठीक है? I तो just want to save time, that's why I write like this. Minus करना है हमने इसमें से, sorry, plus करना है depreciation. Depreciation is 4950. 4950. ये plus का sign. Then minus net indirect tax. Now you can see, you can write on one side minus net indirect tax की जगह फॉर्मूला क्या बनेगा? Indirect tax. अगर आपने लिखा है you write here indirect tax minus subsidy plus NFIA. ठीक है, एक लाइन में आप लिखना चाहते हो, you can expand. Now let us see, ये हो जाएगा 80,000 plus 4950 minus net indirect tax. Indirect tax is 10,600. 10,600 minus subsidies are 1770. 1770 plus NFIA is minus 200. ठीक है, ये प्लस साइन ऑफ द इक्वेशन फॉर्मूला का, आगे माइनस उसकी वैल्यू दी हुई है, तो फिर ब्रैकेट में माइनस 200. ठीक है, सीधा ही नहीं यहाँ पे माइनस लिख देना, ऑल्दो इट विल बिकम नेगेटिव, बट फर्स्टली वी हैव टू फॉलो द इक्वेशन फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग. बाद में when we open the bracket, तो then it obviously it will become negative. Now see what do we get? 80,000 plus 4950 minus, to find this difference, ये plus minus minus 200. Find this difference बेटे कितना आता है? Find and tell me. 8830. हाँ जी बेटे 8830. 8830. ओके 8830. नाउ अगर इसको ब्रैकेट को ओपन करें तो ये सीधा माइनस ही हो जाएगा, माइनस 8830. नाउ प्लीज फाइंड द डिफरेंस. प्लस वैल्यूज को सेपरेटली यू कैन ऐड, नेगेटिव वैल्यूज को सेपरेटली ऐड करके फिर आप डिफरेंस निकाल लो, ये जैसे वट एवर यू फील इजी. Don't follow the answer given in the book blindly. Sometimes in the book also answers are wrong. So please calculate carefully. हम 75920. ठीक आ रहा है, ये बुक में भी यही दिया हुआ है 75920. ओके, सो दिस इज rupees 75,920. Now see in your statement of the question, all these values are in rupees crore. तो साथ में we have to write rupees हमने लिख दिया, साथ में crore. This is our answer. ठीक है, एंड में आंसर को यू हैव टू सर्कल लाइक दिस. ठीक है जी. लेट कमर्स चंदन पाल, अमनप्रीत कौर, प्लीज बी इन टाइम. चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू डू सेकंड क्वेश्चन. नाउ प्लीज सी द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड क्वेश्चन. कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, नाउ वी नो डोमेस्टिक इनकम मीन्स उसके साथ में यू कैन राइट डाउन और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. डोमेस्टिक इनकम वर्ड्स में बताया हुआ है, टेक्निकल टर्म में हमने लिखना हो तो सेम थिंग इज ऑल्सो नोन एज NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. सो यू कैन राइट ऑन द बुक. After some time you will have practice, you will automatically come to know. So let us try to find this. I am going to rub the board. Hope that all have done. ठीक है, एक बार आप लिख लो,
एक दो बार आप करोगे, you will automatically you will be able to remember domestic income means NDP at factor cost. Now you see in your question, आप देखो कि which is the largest term which is given here, that is the very first gross national product at market price. ठीक है, जो भी मेन टर्म दी हुई है उसको लिख के फिर हमने देखना है कि what can we add और what can we subtract. Now this is GNP at market price. ठीक है, now let us see अब इसमें क्या करें. You can unmute yourself बेटे, बीच बीच में you can participate. You should tell what should be subtracted from this to make it a net term. Depreciation. Net indirect tax. हाँ, आप ऐसा कुछ नहीं है कि पहले डेप्रिसिएशन ही लिखना है, आप कोई भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई भी टर्म आगे पीछे लिख लो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ग्रॉस को नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन. देन ये नेशनल है, इसको हमने बनाना है डोमेस्टिक. तो देन व्हाट शुड बी डन? Minus net factor income from abroad. बी लाउडर. Net factor income Minus from टू बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड? minus Subtract. subtracted. माइनस करना पड़ेगा हमें, बिकॉज ये टर्म नेशनल है और बनाना है हमने इसको डोमेस्टिक, तो माइनस करना पड़ेगा. माइनस NFIA, माइनस NFIA. ठीक है, फिर दिस टर्म इज एट मार्केट प्राइस एंड वी वांट टू मेक इट एट फैक्टर कॉस्ट. देन व्हाट शुड बी डन? Minus net indirect tax. minus net indirect tax. यस, माइनस करने पड़ेंगे. मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे तो टर्म हमारी फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी. माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, आफ्टर राइटिंग दिस इक्वेशन फॉर्मूला एक बार क्रॉस चेक कर लो कि कुछ और तो नहीं चाहिए हमें. कई बार हम जल्दी में होते हैं, वी आर इन हरी. ठीक है, मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज रिटन हियर. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन लेट अस पुट द वैल्यूज. GNP at market price is 58,350 minus depreciation is 1,625 minus net factor income from abroad minus 240. अब जहाँ ध्यान से देखिए, ये माइनस इक्वेशन का फॉर्मूला का ऐसे ही लिख देना है, फिर ब्रैकेट में माइनस 240. डायरेक्टली प्लस का साइन नहीं लगाना, पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है. ये फॉर्मूला का माइनस ये वाला, ये जो हमें टर्म में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस 240 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अब यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप अपने आप से लिख लो. तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख रही हूँ. आप एक साइड पे लिख रहे हैं तो आप लिख लो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. तो इनडायरेक्ट टैक्स है 2590 minus subsidies are 1540. But I request you to expand this formula. ब्रैकेट में आप लिख रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा. ठीक है, अब आपको नाउ यू ओपन द ब्रैकेट्स. ये कैलकुलेशन आप अपने बुक में कर सकते हो. हाँ जी बेटे. Done. Is the answer which is given in the book, is that coming? Yes. Yes, ma'am. Okay, very right. 55,915. अब आप देखो ये रुपीस करोड़ है तो साथ में करोड़. ठीक है, सो नाउ यू सी वी जस्ट रिक्वायर 3 लाइन्स. ध्यान से देखो, आपने एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, एक लाइन में वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दिया, लास्ट थर्ड लाइन में आंसर निकाल दिया. ठीक है, तो अननेसेसरीली पेज भरने की ज़रूरत नहीं है कि बिना मतलब कि आप फॉर्मूलेज को एक्सपेंड करते जाओ. आप पहले रफ काम पे बना के देखो, जो भी कटिंग करनी है अपने रफ काम पे करके, उसके बाद फेयर वर्क में जस्ट राइट नीटली. 3 लाइन्स आर हार्डली रिक्वायर्ड. ठीक है, उसी में आपका काम हो जाएगा. राइट, चलिए अब आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने आप, बाद में कर लेना, अभी मैं आगे करवा देती हूँ. ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन यू कैन कैलकुलेट. नाउ आई वांट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ से स्टार्ट करें, बाकी के सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं.
क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए जरा, ये दिया हुआ है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. सो यू प्लीज राइट डाउन डोमेस्टिक इनकम और NDP, net domestic product at factor cost. Domestic income means you have to calculate net domestic product at factor cost. ठीक है, ऐसे ही 6th क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हमने डोमेस्टिक इनकम एंड सेकेंड निकालना है नेशनल इनकम. तो पहले इसकी शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला लिख लो. अब क्या बनता है ये? डोमेस्टिक इनकम मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. फर्स्टली राइट द टर्म्स. फर्स्ट टर्म में NDP एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज डोमेस्टिक इनकम. सेकेंड हमने निकालना है नेशनल इनकम, मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट. सो लेट अस स्टार्ट. अब देखो इसमें देखिए व्हाट इज द मेन टर्म गिवन, दैट इज द वेरी फर्स्ट GDP एट MP. तो फर्स्टली वी राइट दैट. इसमें देखना है हमने क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें. तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, देन बोथ आर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, no changes required. ये मार्केट प्राइस है, वी हैव टू मेक इट एट फैक्टर कॉस्ट. सो वी शुड सब्ट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. नहीं, वैल्यूज अभी पुट नहीं करनी पड़ेंगी. अभी आप देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह उसके पार्ट्स आर गिवन. इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन एंड सब्सिडीज आर गिवन. सो वी कैन एक्सपैंड इट इन ब्रैकेट. अगली लाइन में वी कैन राइट अगेन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके लिख लेंगे इन प्लेस ऑफ दिस. और हाँ, बस इतना ही है अभी के लिए, हमें इतना रिक्वायर्ड है. सो ये बन जाएगा GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस subsidy. Now GDP at MP is equal to, value is 70,150 minus depreciation. Now see your fourth term. Fourth term में see what is written, consumption of fixed capital. So you write it along with this. Consumption of fixed capital means depreciation. You please write or consumption of fixed capital, or the same is also called depreciation. ठीक है, so इसकी value is 3100 minus indirect tax value is 5200 minus subsidies 4000. Now you can find the difference of this. Later on you can subtract, or up to you. If you want to open the bracket, then minus 5200, और ये हो जाएगा minus minus plus 4000. As you feel comfortable and easy, in that manner you can do the calculation. So please try to do. I'm done. Just a minute, okay? हाँ जी बेटे, आर यू गेटिंग राइट आंसर? 65,850 Yes, ma'am. आ गया जी, वेरी गुड, शाबाश. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रेज हैंड. वेरी गुड, हिमानी हैज रेज्ड हर थंब. शाबाश. अमनप्रीत, जसलीन, कनव, दमन, वंदना. लेट मी नो बेटे, कर लिया सबने? Yes, ma'am. Very good, shabash. Many students are not willing to raise hand and even they don't want to start their video also. चलो, आपकी मर्जी है. चलिए, now second part निकालना है नेशनल इनकम. ठीक, चलो, मनदीप ने हाथ ऊपर कर दिया. शाबाश मनदीप, वेरी गुड, कीप इट अप.
चलो नेशनल इनकम. नाउ अदिति ऑल्सो राइट, मनदीप. चलो वेरी गुड गर्ल्स. अब निकालना है नेशनल इनकम. तो आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड. आप ये वैल्यू देखो क्या निकला आपका आंसर. 65,000 सॉरी हाँ 65,850. 65,850 कर दो. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था. ठीक. आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड नाउ. नाउ NNP एट फैक्टर कॉस्ट मीन्स सेकेंड पार्ट क्या है, नेशनल इनकम. तो उसी का ही नाम है NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक. तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा. अब आपकी चॉइस है. अब आप देखो हाउ कैन वी डू. एक तो हमने अभी जो निकाला डोमेस्टिक इनकम, दैट मीन्स NDP एट फैक्टर कॉस्ट. एक तो ये तरीका है, मैं दोनों लिख लेती हूँ. द वे यू फाइंड इजी उसके अकॉर्डिंग यू कैन डू. तो पहले मैं ये वाला लिख रही हूँ जो भी हमने निकाला डोमेस्टिक इनकम, उसकी हेल्प से. NDP एट फैक्टर कॉस्ट दोनों डोमेस्टिक है, सॉरी ये दोनों फैक्टर कॉस्ट हैं, दोनों नेट है. ये डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो प्लस करेंगे प्लस NNP. ठीक. इफ वी गो विद दिस फॉर्मूला तो देन NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस, नाउ सी इन द क्वेश्चन हमें ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है. इन प्लेस ऑफ दिस इट्स पार्ट्स आर गिवन. क्या दिया हुआ है, प्लीज सी थर्ड एंड फिफ्थ टर्म. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो यहाँ लिखेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. टू अब्रॉड या पेड टू अब्रॉड दोनों का एक ही मतलब है. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज. तो ये वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड. कितना निकाला था हमने, ऊपर देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में 65,850. 65,850 प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थर्ड टर्म 800 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हमारी फिफ्थ टर्म है. तो टू अब्रॉड इज 300. तो दोनों का डिफरेंस निकाल लें. बेटे प्लीज एक ध्यान रखना, यहाँ सीधे नहीं 500 लिख देना. ठीक है, कि आपने ये लिखा है NFI, ये सीधे इन प्लेस ऑफ दैट यू पुट द वैल्यू 500. वो ठीक है, बट हाउ हैव यू गॉट दैट वैल्यू, दैट स्टेप इज टू बी शोन हियर. ठीक. चाहे तो उसको लाइन लगा के शो कर दो एक साइड पे, चाहे ऐसे कर लो, बट दैट इज टू बी शोन. तभी पता चलेगा कि 500 कहाँ से आया. ठीक. सो नाउ प्लीज सी कितना आ गया, ये चेक करिए जरा. ये 500 आ गया. 850 में से में प्लस कर दो 500, कितना हो गया ये 66,350. इज इट राइट. प्लीज चेक फास्ट. Yes, ma'am. आ गया बेटे. Ma'am. दोनों में 500 गैप आ गया. 500 इसमें ऐड कर दें तो वी आर गेटिंग 66,350. साथ में रुपीज करोड़. ये हमारा आंसर. ठीक है. दिस इज वन वे. एक तरीका ये है. सेकेंड मेथड ये है, अब मैं मेथड लिख देती हूँ, कैलकुलेशन यू विल डू ऑन योर ओन. सेकेंड तरीका है कि नाउ सी इन द क्वेश्चन हमें GDP एट MP दिया हुआ है मेन टर्म, तो उसकी हेल्प से भी हम बना सकते हैं. आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से. आई एम गोइंग टू डू विद द सेकेंड वे. होप ऑल हैव डन. अब इसकी जगह क्वेश्चन में जो दिया है GDP एट MP. GDP एट MP. अब इसमें देखो क्या करें, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस ये डोमेस्टिक को बनाना है नेशनल, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है जी. नाउ पुट द वैल्यूज योरसेल्फ, ट्राई टू डू इट. GDP at MP 70,150 minus depreciation is 3,100
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो आ जाएगा 5200 माइनस 4000 ब्रैकेट में, 5200 माइनस 4000 टू बी केप्ट इन ब्रैकेट, प्लस NFIA। अब अगेन वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या है हमारे पास, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो फ्रॉम है 800 माइनस 300 ब्रैकेट में। चेक करिए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। हाँ जी बेटे, ट्राई टू बी फास्ट। हाँ जी महाराज, आ गया टाइम कि नहीं, जल्दी करिए जरा। सेम ही आ रहा है मैम। सेम आ गया ना, हाँ बस यही, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, आंसर सेम ही आएगा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली जो डोमेस्टिक इनकम पहले निकाली थी, इधर यू कैन यूज दैट फॉर्मूला और यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। आपका कंफर्ट है, जहाँ आपको जैसे इजी लगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा, राइट। चलिए अब एक पहले मैं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा ही टाइम रह गया, पहले ये करना चाहती हूँ लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, क्योंकि फॉर रेस्ट ऑफ द टाइप्स तकरीबन हमने सारे कर लिए हुए हैं। एक बीच में और है, चलो वो बाद में कराती हूँ। पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, पहले ये इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन इन टेबुलर फॉर्म, रादर वन स्टेटमेंट इज इन द सेंटेंसेज इज गिवन। आई एम रिपीटिंग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ऑफ एन इकोनॉमी इज 65,000 करोड़। तो पहले तो क्या करना है, जो हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया, एक साइड पे आप टेबल की फॉर्म में इसको लिखिए। GNP at market price, ये क्वेश्चन नंबर 11। ये दिया हुआ जो गिवन है वो लिखते जाना है। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इज वैल्यूड एट 1,20,000। कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक 1,20,000। आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है, विच डेप्रीशिएट्स, क्या डेप्रीशिएट हो रहा है, कैपिटल स्टॉक, विच डेप्रीशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि जो डेप्रीसिएशन है वो 10%, 100 के पीछे 10 रुपीज़ के हिसाब से वो डेप्रीशिएट हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, डेप्रीसिएशन हमेशा कैपिटल स्टॉक की होती है, तो इसकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू निकाल लेनी है। डेप्रीशिएट्स एट 10% रेट पर एनम, ये दिया हुआ है, ऐसे लिख के नेक्स्ट लाइन में यहीं पर आप निकाल लो कि डेप्रीसिएशन विल बी 1,20,000 into 10%, 1,20,000 into 10%, तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 zeros करके बाकी बच गया 1 2 0, एक ये 0 और एक ये 0, मीन्स 12,000। तो हमारी डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ गई 12,000। मीन्स हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, हमें कैपिटल स्टॉक की वैल्यू बता दी और ये बता दिया कि एट विच रेट इज इट गेटिंग डेप्रीशिएटेड, तो वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट अवरसेल्व्स। अब हमारे पास ये डेप्रीसिएशन वी हैव गॉट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,000, तो नेक्स्ट लाइन आप देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस 6,000। नेक्स्ट लाइन में सब्सिडीज 1,000, सब्सिडी 1,000, ठीक है। और निकालना क्या है, एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो मतलब आफ्टर राइटिंग ऑल दीज वैल्यूज, अब हमने नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
If you all have written, I can rub the board. ठीक. नाउ जो वैल्यूज हमारे पास है उसकी हेल्प से ये फॉर्मूला बनाते हैं. तो हमारी मेन टर्म क्या थी? GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन. इसको नेट बनाना है. ये मार्केट प्राइस को करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ये नेशनल है, ये भी नेशनल है, नो चेंजेस देयर. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. दिस वाज 65,000. डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेटेड 12,000 कैलकुलेट किया था और माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. तो वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, उसका फॉर्मूला लिख लेना पहले. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दैट इज 6,000 माइनस 1,000. तो ये हो गया 5,000 माइनस के 5,000 माइनस के 12,000, मतलब माइनस के हो गए 17,000. तो इसमें से आप माइनस करें जरा, देखिए कितना आता है. 48,000. 48,000. वेरी राइट. साथ में देख लो करोड़ में है वैल्यूज, तो साथ में करोड़. ठीक है जी. सो हमें ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन हो सकता है. चलो अब हम करते हैं. मैं आपको हिंट दे देती हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा ही है. मैं आपको हिंट देती हूँ, यू कैन डू इट योरसेल्फ आल्सो. क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? आई जस्ट डिवेलप द फॉर्मूला, लेटर ऑन यू कैन डू. तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड सीधा नहीं होता है. अब देखो इन विच फॉर्मूला डज इट कम? इट कम्स अंडर दिस. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है. अब इसमें देखिए हमें दिया क्या हुआ है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है 400, ये वाला फ्रॉम अब्रॉड 400 माइनस पेड टू अब्रॉड. पेड वर्ड नहीं लिखा, मतलब वही है, ये निकालना है. फिर हमें अभी ये भी नहीं पता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दो चीज़ें निकालनी है. अब हमारे पास दो चीज़ें हम एकदम से नहीं निकाल सकते, तो क्या कर सकते हैं? अब आप पहले देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी टर्म है जिसको लिखा जाए ताकि हम ये पहले ये निकालें. वी नीड दिस फर्स्ट. ये होगा तो इसमें से फिर ये माइनस कर देंगे तो वी विल गेट दिस. तो अब आप देखो कौन सी टर्म दी हुई है हमें? GNP एट फैक्टर कॉस्ट. नेशनल वाली टर्म आप ढूंढो. दो टर्म्स दी हुई हैं. एक दिया हुआ है NDP एट MP, पर वो डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक से तो हमें नेट फैक्टर इनकम नहीं मिल सकती. तो आप देखो कि ऐसी कौन सी नेशनल वाली टर्म कौन सी है. तो दैट इज द फर्स्ट वन. तो उसको लिखेंगे हम पहले. तो ये बन जाएगा NFIA इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म GNP एट फैक्टर कॉस्ट. अब आप देखो इसमें से क्या माइनस करें कि हमें ये टर्म मिले. तो ये नेशनल है, नेशनल में से क्या माइनस करें? कौन सी टर्म माइनस की जाए? बाकी सारा सेम हो, तो हमें माइनस करना चाहिए GDP एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, माइनस GDP एट फैक्टर कॉस्ट. रेस्ट ऑल थिंग्स शुड बी सेम. हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस चाहिए, ये वाला. तो ये नेशनल है, इसमें से अगर डोमेस्टिक टर्म माइनस करें तो हमें NFIA वी विल गेट. ठीक, अब हमें ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, नो नीड टू वरी. इसकी जगह देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट टर्म NDP एट मार्केट प्राइस. NDP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, ये कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा. अब आपने इसमें वैल्यू, टाइम खत्म नहीं होने वाला बेटे, वैल्यूज अपने आप पुट करके आप देखना, यू विल गेट द आंसर.
ठीक है, कर लीजिए, नहीं होगा तो बाद में कर लेना। एंड टुडे ट्राई टू डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो। ऑल क्वेश्चंस मैंने करके देखे हैं, सब बड़े आराम से आपके हो जाएंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टिल कोई क्वेश्चन नहीं पता चला तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिक सेंड कर दीजिएगा। टुमारो आई विल ट्राई टू डू दैट फर्स्ट, बट मोस्ट प्रोबेबली आई वांट टू स्टार्ट नेक्स्ट लेसन टुमारो, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम।